بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر کی حد سے پرے، جہاں امیروں کی حویلیاں ختم ہوتی تھیں اور غریبوں کی بستیاں شروع ہوتی تھیں، ایک تنگ سی گلی میں ایک چھوٹا سا کچا سا گھر تھا۔ اس گھر کی دیواریں وقت کے تھپیڑوں سے کمزور ہو چکی تھیں اور چھت سے بارش کا پانی ایسے ٹپکتا تھا جیسے آسمان بھی اس گھر کی بے بسی پر رو رہا ہو۔ یہاں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا نام تو سب بھول چکے تھے، بس سب اسے اماں بی کہہ کر پکارتے تھے۔ اماں بی کی دنیا اس کے اس چھوٹے سے گھر اور اس کے دل میں بسے اللہ پر ایمان تک محدود تھی۔ اس کے شوہر کا انتقال برسوں پہلے ہو چکا تھا اور اولاد کی نعمت سے اللہ نے اسے نوازا نہیں تھا۔ اس دنیا میں اس کا اپنا کہنے کو کوئی نہیں تھا سوائے اس رب کے جس کی عبادت میں وہ دن رات مشغول رہتی۔ اس کی آنکھوں کی روشنی عمر کے ساتھ دھندلا گئی تھی، لیکن اس کے دل کا نور ابھی بھی برقرار تھا۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی اور اس کے لبوں پر کبھی شکوہ نہیں آتا تھا۔ اس کا صبر ایسا تھا جیسے پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے، چاہے آندھی آئے یا طوفان۔ محلے کے لوگ کبھی کبھار اسے کچھ کھانے کو دے جاتے اور اسی پر اس کا گزارا ہو جاتا، لیکن کئی دن ایسے بھی گزرتے جب اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پھر بھی اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان اور سکون رہتا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ اس کا رب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایک دن شہر میں زوروں کی آندھی آئی، آسمان پر کالے بادل ایسے چھا گئے جیسے رات ہو گئی ہو۔ ہوا میں اتنی شدت تھی کہ درخت بھی جھک کر زمین کو چومنے لگے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ اسی وقت ایک مزدور جس کا نام رحیم تھا اپنے کام سے لوٹ رہا تھا۔ رحیم ایک نیک اور ایماندار انسان تھا۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتا اسی سے اپنے پریوار کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کی کمائی اتنی نہیں تھی کہ وہ امیروں جیسی زندگی گزار سکے، لیکن اس کے دل میں سکون تھا۔ وہ ہر روز صبح اللہ کا نام لے کر کام پر نکلتا اور شام کو تھکا ہارا لیکن شکر گزار ہو کر گھر لوٹتا۔ آج آندھی کی وجہ سے کام جلدی ختم ہو گیا تھا اور اسے صرف آدھی دہاڑی ملی تھی۔ اس کے آتے میں صرف اتنا پیسہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر سکتا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر اماں بی کے گھر پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ آندھی کے زور سے اماں بی کے گھر کی کچی دیوار کا ایک حصہ گر گیا ہے اور چھت بھی ایک طرف سے جھک گئی ہے۔ رحیم کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے سوچا، یا اللہ، اس طوفان میں یہ بیچاری بوڑھی عورت کہاں جائے گی؟ اس کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ ایک طرف اس کے اپنے بچوں کی بھوک تھی اور دوسری طرف ایک بے بس عورت کی لاچاری۔ اس نے ایک پل کے لیے سوچا کہ وہ اپنے گھر چلا جائے، لیکن اس کا امیر اسے اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنے دل کی سنی اور اماں بی کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اماں بی کی کمزور سی آواز آئی، کون ہے؟ رحیم نے کہا، اماں بی، میں رحیم ہوں، آپ کا گھر گر گیا ہے، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اماں بی نے دروازہ کھولا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی حیرت اور خوف تھا۔ رحیم نے انہیں تسلی دی اور کہا، اماں بی، فکر نہ کریں، میں ابھی اس دیوار کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر رحیم نے اپنے کندھے پر رکھا ہوا گمچھا کمر سے باندھا اور کام میں لگ گیا۔ آندھی ابھی بھی چل رہی تھی اور بارش کی بوندیں بھی گرنے لگی تھیں، لیکن رحیم کو اس سب کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس جلد سے جلد اس دیوار کو کھڑا کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے آس پاس سے اینٹیں اکٹھی کیں، مٹی کا گارا بنایا اور دیوار کو دوبارہ چننے لگا۔ اس کے ہاتھ مٹی اور پانی سے سنے ہوئے تھے، لیکن اس کا دل ایک عجیب سے سکون سے بھرا ہوا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اللہ اس کے اس کام سے راضی ہے۔ گھنٹوں کی محنت کے بعد جب آندھی تھمی اور آسمان صاف ہوا تو دیوار دوبارہ کھڑی ہو چکی تھی۔ رحیم نے چھت کو بھی لکڑیوں کا سہارا دے کر ٹھیک کر دیا تھا۔ وہ تھک کر چور ہو چکا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ اماں بی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ انہوں نے رحیم کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، بیٹا، اللہ تجھے اس کی جزا دے، تو نے آج ایک بے سہارا کی مدد کی ہے۔ جا، رب تیری ہر مشکل آسان کرے اور تجھے اتنا دے کہ تو دینے والا بنے، لینے والا نہیں۔ رحیم نے ان کی دعاؤں کو اپنے دامن میں سمیٹا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ رات ہو چکی تھی اور اس کے بچے بھوکے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کے پاس اب ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج رات وہ اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ اپنے گھر پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر ایک شاہی بگھی کھڑی ہے اور 2 سپاہی اس کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔
रहीम का दिल धक से रह गया। उसने सोचा, मुझसे ऐसी क्या खता हो गई कि बादशाह के सिपाही मेरे दरवाजे पर आ गए। वो डरते डरते आगे बढ़ा और सिपाहियों से पूछा, हुजूर क्या बात है? एक सिपाही ने उसे गौर से देखा और पूछा, क्या तुम्हारा नाम रहीम है? रहीम ने हाँ में सर हिलाया। सिपाही ने कहा, बादशाह सलामत ने तुम्हें फौरन दरबार में याद फरमाया है। रहीम की हैरत की इंतहा न रही। वो सोचने लगा कि बादशाह को उस जैसे मामूली मजदूर से क्या काम हो सकता है, लेकिन बादशाह का हुक्म था तो उसे जाना ही था। वो सिपाहियों के साथ उस शाही बग्घी में बैठकर दरबार की तरफ चल पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे नहीं मालूम था कि उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है और अम्मा भी की दुआ कबूलियत का दर्जा पा चुकी है। उस अंधेरी रात में उस शाही बग्घी का सफर उसके लिए एक अनजाने मुस्तकबिल का सफर था, जहां उसकी तकदीर एक नए इम्तिहान के लिए उसका इंतजार कर रही थी। शाही बग्घी हवा से बातें करती हुई महल की तरफ दौड़ी जा रही थी। रहीम, जो जिंदगी भर पैदल चला था या ज्यादा से ज्यादा बैलगाड़ी की सवारी की थी, आज मखमल की गद्दियों पर बैठा था, लेकिन इस आराम में भी उसे बेचैनी थी। उसका दिल किसी अनजाने खौफ से धक धक कर रहा था। वह बार बार अपने फटे पुराने मिट्टी से सने कपड़ों को देखता और फिर बग्घी की शाही शानो शौकत को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस जैसे खाक नशीं का इस आलीशान महल में क्या काम हो सकता है। उसके जहन में हजारों वसफ से आ रहे थे। कहीं उससे अनजाने में कोई गुस्ताखी तो नहीं हो गई? कहीं किसी अमीर आदमी ने उसके खिलाफ झूठी शिकायत तो नहीं कर दी? या फिर यह सब एक ख्वाब है? उसने अपनी आंखें जोर से बंद की और खोली, लेकिन मंजर वही था। बग्घी महल के आलीशान दरवाजे पर जाकर रुकी। सिपाहियों ने दरवाजा खोला और उसे अदब से उतरने को कहा। रहीम ने झिझकते हुए बग्घी से कदम बाहर रखा। उसके सामने एक ऐसी दुनिया थी जो उसने सिर्फ कहानियों में सुनी थी। ऊंचे ऊंचे सुतून, दीवारों पर नक्काशी, हर तरफ मशालें रोशन थीं और चप्पे चप्पे पर शाही मुहाफिज तैनात थे। रहीम की आंखें इस चकाचौंध से खड़ा हो रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया है। सिपाही उसे एक बड़े से दरबार आम में ले गए। दरबार खामोश था, लेकिन इस खामोशी में एक हैबत थी। सामने ऊंचे तख्त पर बादशाह सलामत जलवा अफरोज थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा जलाल था, लेकिन आंखों में सख्ती के बजाय एक गहरी सोच थी। रहीम को बादशाह के सामने पेश किया गया। उसने जमीन तक झुककर सलाम किया। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे और जुबान खुश्क हो रही थी। बादशाह ने एक निगाह उस पर डाली और फिर अपने वजीर से कुछ कहा। वजीर आगे बढ़ा और रहीम से मुखातिब हुआ। रहीम, बादशाह सलामत तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। जो भी पूछा जाए सच सच बताना। रहीम ने बस लरजते हुए सर हिला दिया। बादशाह की भारी रोबदार आवाज दरबार में गूंजी। रहीम, हमने सुना है कि तुम एक नेक और ईमानदार मजदूर हो। आज शाम जब आंधी और तूफान ने शहर में तबाही मचा रखी थी, तब तुम कहां थे और क्या कर रहे थे? रहीम की हैरत और बढ़ गई। बादशाह को इस बात से क्या दिलचस्पी हो सकती है कि वह कहां था? उसने हिम्मत जुटाकर टूटी फूटी जुबान में कहना शुरू किया। आलीजा, मैं काम से लौट रहा था। आंधी की वजह से काम जल्दी खत्म हो गया था और मुझे आधी दिहाड़ी मिली थी। बादशाह ने पूछा, फिर तुम अपने घर क्यों नहीं गए? हमारे खबरों ने बताया कि तुम शहर के दूसरे कोने में एक गरीब बस्ती की तरफ जाते देखे गए थे। रहीम का दिल अब जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा कि जरूर उस पर कोई जासूसी कर रहा था। उसने डरते डरते कहा, हुजूर, वो मैं रास्ते में एक बूढ़ी औरत अम्मा बी का घर है। तूफान से उनके घर की दीवार गिर गई थी। मैं बस उसी को ठीक करने रुक गया था। बादशाह के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और फिर गायब हो गई। उन्होंने अगला सवाल किया, तुम्हें उस काम के लिए उस बूढ़ी औरत ने क्या दिया? रहीम ने फौरन कहा, नहीं हुजूर, उनके पास देने को है ही क्या। वो तो खुद बेसहारा हैं। मैंने तो बस अल्लाह की रजा के लिए उनकी मदद कर दी। यह सुनते ही दरबार में एक सन्नाटा छा गया। बादशाह कुछ देर खामोश रहे, जैसे वो रहीम के लफ्जों की सच्चाई को अपनी रूह में उतार रहे हों। फिर उन्होंने अपने वजीर को इशारा किया। वजीर ने एक थाल पेश किया जिस पर रेशम का कपड़ा पड़ा था। बादशाह ने रहीम से कहा, रहीम, हम तुम्हारी नेकी और ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुए। हम तुम्हें एक इनाम देना चाहते हैं। वजीर ने थाल से कपड़ा हटाया। उसमें सोने की अशर्फियां चमक रही थीं। इतना सोना रहीम ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बादशाह ने कहा, यह 100 अशर्फियां तुम्हारी हैं।
यह तुम्हारी नेकी का इनाम है। रहीम ने अशरफियों को देखा और फिर बादशाह को। उसके अंदर एक कशमकश शुरू हो गई। एक तरफ उसके बच्चों की भूख थी, उसकी गरीबी थी, उसकी जरूरतें थीं। यह अशरफियां उसकी जिंदगी बदल सकती थीं, लेकिन दूसरी तरफ उसके ज़मीर ने आवाज दी। उसने अम्मा भी की मदद किसी इनाम के लालच में नहीं की थी। वो सौदा नहीं था, वो तो एक इबादत थी। अगर आज उसने यह इनाम ले लिया तो उसकी नेकी की क्या कीमत रह जाएगी। उसने हाथ जोड़ लिए और लरजती आवाज में कहा, बादशाह सलामत, आपकी जर्रा नवाजी का शुक्रिया, लेकिन मैं से यह इनाम नहीं ले सकता। दरबार में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। एक मामूली मजदूर सोने की अशरफियों को ठुकरा रहा था। बादशाह की पेशानी पर बल पड़ गए। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, क्यों, क्या यह इनाम कम है? रहीम ने सर झुकाए हुए कहा, नहीं आलीजा, यह मेरी हैसियत से बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने वो काम किसी इनाम के लिए नहीं किया था। मैंने वो काम अपने रब को राजी करने के लिए किया था। उसका सिला मैं उसी से लूंगा। अगर मैंने आपसे यह अशरफियां ले ली तो मेरा वो अमल जाया हो जाएगा। मैं अपनी नेकी का सौदा नहीं कर सकता हुजूर, मुझे माफ कर दें। रहीम की इस बात में ऐसी सच्चाई और ऐसी सादगी थी कि बादशाह सलामत अपने तख्त से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने रहीम के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, रहीम, आज तुमने हमें हरा दिया। हमने सोचा था कि दौलत हर इंसान को खरीद सकती है, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि सच्चा ईमान और नेकी अनमोल है। हमने तुम्हारा इम्तिहान लिया था और तुम उसमें पूरे उतरे हो। रहीम को अब समझ आया कि यह सब क्या था। यह एक जाल था, एक इम्तिहान था जिसमें बादशाह उसके किरदार को परखना चाहते थे। बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, वजीर आलम, आज से रहीम हमारे शाही खजाने का मुहाफिज होगा। जिस इंसान को सोने की चमक अंधा ना कर सके, उससे बेहतर खजांची और कौन हो सकता है। इसे शाही लिबास पहनाया जाए और इसके परिवार को महल में लाने का इंतजाम किया जाए। रहीम को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। एक पल में उसकी दुनिया बदल चुकी थी। एक मामूली मजदूर जिसके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, अब मुल्क के सबसे बड़े खजाने का मालिक बनने जा रहा था। उससे अम्मा बी की दुआ याद आई, जा, रब तुझे इतना दे कि तू देने वाला बने, लेने वाला नहीं। उसकी आंखों से शुक्र के आंसू बह निकले। उसे यकीन हो गया कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह तो बस शुरुआत थी। शाही महल की दीवारों के अंदर साजिशों और हसद के साये भी पलते थे, और उसकी ईमानदारी का सबसे बड़ा इम्तिहान तो अभी बाकी था। रहीम के लिए अगले कुछ दिन एक ख्वाब की तरह थे। उसे शाही लिबास पहनाया गया, जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसके परिवार को, उसकी बीवी और 2 मासूम बच्चों को बड़े आदब और एतबार के साथ महल के एक हिस्से में मुंतकिल कर दिया गया। जब रहीम की बीवी ने उसे शाही लिबास में देखा तो वह उसे पहचान ही न सकी। उसकी आंखों में आंसू भी थे और हैरानगी भी। रहीम ने उसे पूरी कहानी सुनाई, कैसे अम्मा बी की दुआ कबूल हुई और कैसे बादशाह ने उसकी ईमानदारी का इम्तिहान लिया। दोनों मियां बीवी ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिसने उन्हें गर्द से उठाकर आसमान पर बिठा दिया था। रहीम ने अपने नए काम को पूरी लगन और ईमानदारी से अंजाम देना शुरू किया। शाही खजाना, जहां दौलत के अंबार लगे थे, अब उसकी निगरानी में था। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात के ढेर उसके सामने थे, लेकिन रहीम की निगाहों में उनकी चमक मिट्टी से ज्यादा न थी। वह हर सिक्के का हिसाब रखता, हर खर्च का हिसाब लिखता। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने जल्द ही बादशाह सलामत का दिल जीत लिया। बादशाह उस पर आंखें बंद करके भरोसा करने लगे और अक्सर दरबार में उसकी मिसाल देते। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां साये भी गहरे हो जाते हैं। रहीम की यह तरक्की और बादशाह से उसकी कुर्बत महल में मौजूद कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगी थी। इनमें सबसे आगे था वजीर आलम कमरुद्दीन। कमरुद्दीन एक चालाक और मक्कार इंसान था। बरसों से वह बादशाह का वजीर था और शाही खजाने पर भी उसी का कंट्रोल था। वह खजाने से चोरी छिपे अपनी तिजोरियां भरता रहा था और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई थी। लेकिन रहीम के आने से उसके सारे रास्ते बंद हो गए थे। रहीम की ईमानदारी उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। उसे डर था कि कहीं रहीम उसकी पुरानी चोरियों का पर्दाफाश न कर दे। उसके दिल में रहीम के लिए हसद की आग जलने लगी। वह हर वक्त रहीम को नीचा दिखाने और उसे बादशाह की नजरों से गिराने का मौका तलाश करने लगा।
उसके साथ दरबार के कुछ और अमीर और ओहदेदार भी शामिल हो गए, जिनकी बेईमानी की दुकान रहीम की वजह से बंद हो चुकी थी। उन्होंने मिलकर रहीम के खिलाफ साजिशें बुनना शुरू की। शुरुआत में उन्होंने छोटी छोटी अफवाहें फैलाई। कभी यह कहा जाता कि रहीम को हिसाब किताब का इल्म नहीं है, वह एक जाहिल मजदूर है। कभी यह शोर मचाया जाता कि उसने खजाने से अपने रिश्तेदारों को नवाजा है। लेकिन बादशाह पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि रहीम का काम शीशे की तरह साफ था। जब इन छोटी छोटी चालों से काम न बना तो वजीर कमर उद्दीन ने एक बहुत गहरी और खतरनाक साजिश रची। उसने खजाने के कुछ पुराने मुहाफिजों को, जो उसके वफादार थे, लालच देकर अपने साथ मिला लिया। एक रात जब चांद भी बादलों में छुपा हुआ था, वजीर ने उन मुहाफिजों की मदद से शाही खजाने की सबसे कीमती तिजोरी से एक लाल रंग का बेशकीमती हीरा चुरा लिया। यह हीरा बादशाह को सबसे ज्यादा अजीज था और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अब रहीम पर थी। अगली सुबह जब रहीम अपने मामूल के मुताबिक खजाने का जायजा लेने पहुंचा तो उसने देखा कि तिजोरी का ताला टूटा हुआ है और वह अनमोल हीरा गायब है। रहीम के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसका चेहरा जर्द पड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसे एक बहुत बड़ी साजिश में फंसाया गया है। उसने फौरन बादशाह को इतला दी। बादशाह सलामत तूफान की तरह खजाने में दाखिल हुए। जब उन्होंने खाली तिजोरी देखी तो उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वजीर कमरुद्दीन और उसके साथियों भी मौके पर मौजूद थे। वजीर ने आगे बढ़कर बड़े अफसोस भरे लहजे में कहा, आलीजा, हमें तो पहले ही शका था। एक मामूली मजदूर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल सकता है? दौलत की चमक ने आखिर इसकी आंखें भी अंधा कर दी। जरूर इसी ने हीरा चुराया है। एक दूसरे अमीर ने बात आगे बढ़ाई, हुजूर, इसके घर की तलाशी ली जाए, हीरा वहीं से मिलेगा। रहीम खामोश खड़ा था। उसकी जबान गोया उसके गले में ही फंस गई थी। वह क्या कहता? उसकी बेगुनाही का कोई गवाह नहीं था। सारे सबूत उसके खिलाफ थे। जिम्मेदारी उसकी थी। चोर भी वही ठहराया जा रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी और बच्चों का चेहरा घूम गया। उसे अम्मा बी का चेहरा याद आया। उसे लगा जैसे उसकी नेकी का सिला उसे इस सूरत में मिल रहा है। बादशाह ने गुस्से में रहीम की तरफ देखा। उनकी आंखों में वही सख्ती लौट आई थी जो रहीम ने पहली बार देखी थी। उन्होंने हुक्म दिया, रहीम, हमने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें इज्जत दी और तुमने हमारी पीठ में छुरी घोंप दी। हम तुम्हें सुबह तक की मोहलत देते हैं। या तो हीरा पेश करो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, और इसका अंजाम सिर्फ मौत है। यह कहकर बादशाह तेजी से वहां से चले गए। वजीर कमरुद्दीन और उसके साथी एक जालिमाना मुस्कुराहट के साथ रहीम को देख रहे थे। रहीम को फौरन कैद खाने में डाल दिया गया। लोहे की ठंडी सलाखें अब उसकी किस्मत बन चुकी थी। एक पल में वह शाही खजांची से मौत का मुंह देखने वाले एक कैदी बन गया था। अंधेरी कोठरी में तन्हाई में उसने आसमान की तरफ देखा और उसके दिल से एक आह निकली, या अल्लाह, यह कैसा इम्तिहान है। मैंने तो नेकी का रास्ता चुना था, फिर यह सजा किस गुनाह की मिल रही है। वह नहीं जानता था कि यह इम्तिहान उसकी ईमानदारी का नहीं बल्कि उसके सब्र और अल्लाह पर उसके यकीन का था। और इस इम्तिहान का नतीजा उसकी सोच से कहीं परे था। कैद खाने की अंधेरी कोठरी ठंडी और सीलन भरी थी। पत्थर की दीवारों से रिसने वाला पानी रहीम के जिस्म को नहीं बल्कि उसकी रूह को ठंडा कर रहा था। वह लोहे की सलाखों के पीछे जमीन पर बैठा उस गुनाह की सजा का इंतजार कर रहा था जो उसने किया ही नहीं था। उसके कानों में बादशाह के अल्फाज गूंज रहे थे, अंजाम सिर्फ मौत है। एक पल के लिए उसके दिल में मायूसी का अंधेरा छाने लगा। उसने सोचा, क्या नेकी का रास्ता हमेशा इतना ही दुश्वार होता है? क्या ईमानदारी का सिला यही है? उसके सामने उसकी बीवी का रोता हुआ चेहरा, उसके बच्चों की मासूम आंखें आ गईं। उसका दिल दर्द से फटने लगा। वह उनके लिए ही तो यह सब कर रहा था, और अब वह उन्हें इस तरह बेबस छोड़कर चला जाएगा। उसने अपना सर दीवार से टिका दिया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू बेबसी के थे, दर्द के थे। लेकिन फिर उस अंधेरी कोठरी की तन्हाई में उसे अम्मा बी का चेहरा याद आया। उसे उनकी दुआ के अल्फाज याद आए, जा, रब तेरी हर मुश्किल आसान करे। और फिर उसे याद आया कि अम्मा भी हर हाल में कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करती थी, चाहे उनके घर में चूल्हा जले या न जले। उनका सब्र, उनका यकीन, उनकी तस्लीम, ये सब एक एक करके रहीम के दिल में उतरने लगा। रहीम ने अपने आंसू पोंछे। उसने सोचा, मेरा रब मुझे देख रहा है। वह जानता है कि मैं बेगुनाह हूं। अगर उसकी रजा इसी में है कि मैं इस इल्जाम को कबूल करूं
उन्हें तो मुझे मंजूर है, वह बेहतर इंसाफ करने वाला है। उसके दिल से मायूसी का बादल हट गया और सब्र और यकीन की रोशनी फैल गई। उसने वुजू किया, क्योंकि कोठरी में पानी का एक मटका रखा था, और नियत बांधकर नमाज में खड़ा हो गया। उसने सजदे में गिरकर दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ कायनात के मालिक, तू सब देख रहा है, तू दिलों के भेद जानता है। मैंने तेरी रजा के लिए एक काम किया और आज मैं इस हाल में हूँ। मुझे इस बात का गम नहीं कि मुझे मौत की सजा सुनाई गई है। मुझे गम इस बात का है कि लोग कहेंगे कि नेकी का अंजाम बुरा होता है। ऐ मेरे रब, मेरी बेगुनाही को जाहिर कर दे, ताकि लोगों का ईमान नेकी से न उठ जाए। लेकिन अगर तेरी रजा मेरी मौत में है तो मुझे सब्र दे और मेरे परिवार की हिफाजत फरमा। बेशक तू जो करता है बेहतर करता है। दुआ मांगकर उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। उसे अब मौत का खौफ नहीं था। उसे यकीन था कि उसका रब उसके लिए जो भी फैसला करेगा उसमें कोई ना कोई भलाई जरूर होगी। उधर महल में रहीम की बीवी, जिसका नाम ज़ैनब था, दीवानों की तरह रो रही थी। जब उसे खबर मिली कि उसके शौहर को चोरी के इल्जाम में कैद कर लिया गया है और उसे मौत की सजा हो सकती है, तो उस पर जैसे कयामत टूट पड़ी। उसके बच्चे अपनी मां को रोता देखकर सहम गए थे और उससे लिपट कर रो रहे थे। ज़ैनब एक मामूली औरत थी, जिसने कभी महल की दहलीज नहीं देखी थी। वह किसी को जानती नहीं थी, किसी से फरियाद नहीं कर सकती थी, लेकिन वह रहीम की बीवी थी और उसके अंदर भी सब्र और हिम्मत का वही समंदर मौजूद था। रोते रोते अचानक वह खामोश हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने बच्चों को सीने से लगाया। उसने सोचा, रोने से कुछ नहीं होगा, मेरे शौहर बेगुनाह हैं और मुझे उनके लिए कुछ करना होगा। लेकिन वह क्या कर सकती थी? एक गरीब औरत की आवाज बादशाह तक कैसे पहुंच सकती थी? तभी उसके जहन में एक रोशनी हुई। उसे अम्मा बी का ख्याल आया। उसे यकीन था कि यह सब अम्मा बी की दुआओं का ही सिलसिला है। उसे लगा कि इस मुश्किल का हल भी वहीं से मिलेगा। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। महल के पहरेदार किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे, लेकिन ज़ैनब ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने बच्चों को लेकर पिछले दरवाजे से नजरें बचाकर महल से बाहर निकल गई। वह उन सुनसान गलियों में दौड़ने लगी जहां कुछ दिन पहले तक उसका घर हुआ करता था। वह रोती जाती और दौड़ती जाती। उसका मकसद सिर्फ एक था, अम्मा बी तक पहुंचना। घंटों बाद थकी हारी जब वह उस गरीब बस्ती में पहुंची तो सुबह की अजान की आवाज आ रही थी। उसने अम्मा बी के दरवाजे पर दस्तक दी। अम्मा बी ने दरवाजा खोला और ज़ैनब को इस हालत में देखकर हैरान रह गई। ज़ैनब उनके कदमों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए पूरी कहानी अम्मा बी को सुना दी। अम्मा बी ने ज़ैनब को उठाया, उसे पानी पिलाया और बड़े इत्मीनान से उसकी सारी बात सुनी। उनके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न कोई परेशानी। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटी घबराओ नहीं, जिसका रब है उसका सब है। अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता जरूर है, लेकिन कभी रुसवा नहीं करता। रहीम का इम्तिहान अब खत्म होने वाला है। चलो हम उसके पास चलते हैं जो सबसे बड़ा बादशाह है। ज़ैनब को उनकी बात समझ नहीं आई। उसने हैरानी से पूछा, कहाँ? अम्मा बी? अम्मा बी ने अपना वही पुराना फटा हुआ दुपट्टा ओढ़ा, अपनी लाठी उठाई और ज़ैनब का हाथ पकड़कर कहा, बादशाह सलामत के दरबार में आज एक बूढ़ी औरत का सब्र, एक मजदूर की नेकी और एक बीवी की फरियाद मिलकर इंसाफ का दरवाजा खटखटाएंगे। और देखना, वह दरवाजा जरूर खुलेगा, क्योंकि उसे खोलने वाला इंसान नहीं, खुद रब कायनात होगा। और फिर शहर ने एक अजीब मंजर देखा। एक बूढ़ी कमजोर औरत अपनी लाठी के सहारे एक रोती हुई औरत और दो मासूम बच्चों को लिए शाही महल की तरफ चल पड़ी थी। उनके पास न फौज थी, न दौलत, न सिफारिश। उनके पास बस उनके दिल में बसा ईमान, उनकी आंखों में सच्ची फरियाद और उनके लबों पर अल्लाह का नाम था। उन्हें नहीं पता था कि महल के दरवाजे उनके लिए खुलेंगे या नहीं, लेकिन उन्हें यह यकीन था कि आसमान का दरवाजा उनके लिए खुल चुका है। जब सूरज ने अपनी पहली किरणें शहर पर बिखेरी तो लोगों ने एक ऐसा मंजर देखा जिसे भुलाना नामुमकिन था। एक कमर झुकी हुई बूढ़ी औरत जिसके हाथ में एक लाठी थी, एक मायूस औरत जिसकी आंखों से आंसू रवां थे, और दो सहमे हुए बच्चे जो अपनी मां का पल्लू थामे हुए थे, शाही महल के अजीम और शान दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी चाल में थकान थी, लेकिन उनके इरादे में एक पहाड़ जैसी मजबूती थी। ये अम्मा बी थी, जिनके साथ रहीम की बीवी ज़ैनब और उसके बच्चे थे। जब वे महल के दरवाजे पर पहुंचे तो शाही मुहाफिजों ने उन्हें रोक लिया।
उनके फटे पुराने कपड़े और उनकी हैसियत देखकर एक मुहाफिज ने सख्ती से पूछा, ऐ औरतों, यहाँ क्या कर रही हो? ये कोई खैरात खाना नहीं है। ज़ैनब डर गई, लेकिन अम्मा भी आगे बढ़ी और अपनी कमजोर लेकिन पुरअसर आवाज में बोली, बेटा, हमें भीख नहीं, इंसाफ चाहिए। हम बादशाह सलामत से मिलना चाहते हैं। मुहाफिज उनकी बात सुनकर हंस पड़ा। बादशाह सलामत और तुमसे मिलेंगे? पगली हो गई हो क्या बुढ़िया? बादशाह सलामत के पास तुम जैसे गरीबों के लिए वक्त नहीं है। अम्मा बी ने जवाब दिया, वक्त तो उस रब के पास भी नहीं होता, लेकिन जब कोई मजलूम उसे पुकारता है तो वह अरश से फर्श पर आ जाता है। तुम्हारे बादशाह तो फिर भी एक इंसान है। जाकर उनसे कह दो कि एक मजलूम की मां फरियाद लेकर आई है। अगर उन्होंने आज हमारी न सुनी तो हम उस बादशाह के दरबार में जाएंगे जो सबका बादशाह है, और फिर तुम्हारे बादशाह को वहां जवाब देना पड़ेगा। अम्मा बी की आवाज में ऐसी सच्चाई और ऐसा यकीन था कि मुहाफिज एक पल के लिए लाजवाब हो गया। उसने ऐसी जुर्रत आज तक किसी में नहीं देखी थी। फिर भी उसने उन्हें डांटकर भगाना चाहा, लेकिन तब तक वहां लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी। हर कोई हैरान था कि ये कौन औरतें हैं जो सुबह सुबह शाही महल के सामने खड़ी हैं। बात आहिस्ता आहिस्ता महल के अंदर तक पहुंच गई। वजीर कमरुद्दीन को जब यह खबर मिली तो वह परेशान हो गया। उसे डर था कि कहीं यह मामला तूल न पकड़ ले। उसने फौरन मुहाफिजों को हुक्म भेजा कि इन औरतों को कैद कर लो, ताकि ये कोई हंगामा न कर सके। लेकिन उससे पहले कि मुहाफिज कुछ कर पाते, बादशाह सलामत, जो सुबह की सैर के लिए अपने बाग में जा रहे थे, उनकी नजर इस भीड़ पर पड़ी। उन्होंने अपने एक खादिम से इसका सबब पूछा। खादिम ने डरते डरते बताया कि एक बूढ़ी औरत अपने साथ एक और औरत और 2 बच्चों को लेकर आई है और आपसे मिलने की जिद कर रही है। बादशाह को गुस्सा आया, लेकिन फिर उनके दिल में ख्याल आया, आखिर ऐसी क्या बात है जो एक बूढ़ी औरत को इस तरह मेरे दरवाजे तक ले आई। उन्होंने हुक्म दिया, उन्हें दरबार खास में पेश किया जाए। यह सुनकर वजीर कमरुद्दीन के होश उड़ गए। उसने बादशाह को रोकने की कोशिश की। आलीजा, ये मामूली लोग हैं, इनकी बातों में आकर अपना वक्त जाया न करें। ये जरूर उस चोर रहीम के रिश्तेदार होंगे, उसकी सिफारिश करने आए होंगे। बादशाह ने वजीर की तरफ एक तेज निगाह से देखा और कहा, वजीर आलम, हमारी सल्तनत में हर फरियादी को सुना जाता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, और अगर ये उस शख्स के रिश्तेदार हैं जिसे हमने मौत की सजा सुनाई है, तब तो इन्हें सुनना और भी जरूरी है। वजीर चुप हो गया, लेकिन उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। अम्मा भी, ज़ैनब और बच्चों को दरबार खास में लाया गया। यह वही दरबार था जहां रहीम को उसकी ईमानदारी का इनाम मिलने वाला था। आज उसी दरबार में उसकी जिंदगी और मौत का फैसला होने जा रहा था। बादशाह अपने तख्त पर बैठे थे। उनके चेहरे पर सख्ती थी। उन्होंने अम्मा बी से पूछा, क्या फरियाद है तुम्हारी है औरत? क्यों सुबह सुबह हमारे महल के बाहर हंगामा कर रही थी? अम्मा बी ने अपनी लाठी जमीन पर टिकी और बिना डरे कि बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहा, बादशाह सलामत, मैं हंगामा करने नहीं, इंसाफ मांगने आई हूं। मैं उस रहीम की मां तो नहीं जिसने उसे जन्म दिया, लेकिन मैं उसकी रूहानी मां हूं, जिसकी इज्जत बचाने के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। बादशाह ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मा बी ने पूरा किस्सा सुनाना शुरू किया। कैसे तूफान की रात में रहीम ने अपनी परवाह न करते हुए उनके घर की दीवार बनाई, कैसे उसने उनसे कोई उजरत नहीं ली, और कैसे उन्होंने उसके लिए दुआ की थी। फिर ज़ैनब ने रोते हुए बताया कि उसका शौहर कितना ईमानदार और नेक है, वह कभी चोरी नहीं कर सकता। उसने कहा, बादशाह सलामत, आपने उसे 100 अशरफियां दी, उसने वो ठुकरा दी। जो शख्स सोने के ढेर को ठोकर मार सकता है, वह एक हीरे की चोरी कैसे कर सकता है? जरूर उसे फंसाया गया है। अम्मा बी ने बात आगे बढ़ाई, बादशाह सलामत, आप इस मुल्क के हाकिम हैं, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर एक बेगुनाह को सजा मिली तो कयामत के दिन आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? मैं आपसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख नहीं मांगती, मैं आपसे सिर्फ यह मांगती हूं कि आप इस मामले की तहकीक दोबारा कराएं, सच और झूठ को अलग करें। अगर मेरा बेटा गुनहगार है तो बेशक उसे सजा दें, लेकिन अगर वह बेगुनाह है तो उसकी इज्जत उसे वापस लौटा दें। अम्मा बी की बातों में इतना दर्द, इतनी सच्चाई और इतना यकीन था कि दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। बादशाह सलामत, जो पत्थर दिल समझे जाते थे, उनका दिल भी पिघल गया। उन्हें रहीम का चेहरा याद आया जिसने अशरफियों को ठुकरा दिया था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने जल्दबाजी में फैसला कर लिया है। उनके दिल ने गवाही दी कि ये औरतें झूठ नहीं बोल रही हैं।
उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, हम तुम्हारी फरियाद सुनते हैं। हम इस मामले की तहकीक दोबारा कराएंगे और हम खुद इस तहकीक की निगरानी करेंगे। फिर उन्होंने वजीर कमर उद्दीन की तरफ देखा जिसका रंग उड़ चुका था। बादशाह ने हुक्म दिया, वजीर आलम रहीम को फौरन कैद खाने से रिहा करके दरबार में पेश किया जाए और खजाने के उन तमाम मुहाफिजों को भी गिरफ्तार किया जाए जो उस रात पहरे पर थे। बादशाह का हुक्म सुनते ही वजीर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। उसने सोचा था कि वह एक मामूली मजदूर को फंसाकर साफ बच जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस मजदूर के पीछे एक बूढ़ी औरत की दुआ और अल्लाह पर उसका कामिल ईमान खड़ा है, जिसके सामने दुनिया की कोई साजिश नहीं टिक सकती। बादशाह का हुक्म सुनते ही दरबार में एक खलबली मच गई। सिपाही कैद खाने की तरफ दौड़े और वजीर कमर उद्दीन का चेहरा देखने लायक था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें ऐसे चमक रही थीं जैसे उसके गुनाहों का आईना बन गई हों। वह बार बार बादशाह से कुछ कहने की कोशिश करता, लेकिन उसकी जुबान उसके दिमाग का साथ नहीं दे रही थी। उसे अपना अंजाम साफ नजर आ रहा था। थोड़ी ही देर में सिपाही रहीम को लेकर दरबार में हाजिर हुए। कैद खाने की एक रात ने ही उसे तोड़कर रख दिया था। उसके शाही लिबास पर धूल और मिट्टी लगी थी, उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और आंखें अंदर को धंस गई थीं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर दरबार में खड़ी अम्मा भी, अपनी बीवी जैनब और अपने बच्चों पर पड़ी, उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे समझ नहीं आया कि यह सब यहाँ कैसे पहुंचे, लेकिन उन्हें देखकर उसके दिल को एक सुकून मिला। वह उनकी तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन सिपाहियों ने उसे रोक रखा था। जैनब अपने शौहर को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मा बी ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ फेरा और सब्र करने का इशारा किया। बादशाह ने रहीम से मुखातिब होकर कहा, रहीम, हमने जल्दबाजी में फैसला किया, लेकिन इन औरतों की फरियाद ने हमें दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम तुम्हें एक मौका देते हैं, अपनी बेगुनाही साबित करो। रहीम ने एक नजर अम्मा बी को देखा, जिनकी आंखों में उसके लिए यकीन था, और फिर बादशाह से कहा, आलीजा, मेरी बेगुनाही का सबसे बड़ा गवाह मेरा अल्लाह है। मैं बस इतना जानता हूं कि मैंने कोई चोरी नहीं की, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि मेरे खिलाफ एक गहरी साजिश रची गई है। इसी बीच सिपाही खजाने के उन 5 मुहाफिजों को गिरफ्तार करके ले आए जो उस रात पहरे पर थे। उन्हें जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। बादशाह ने उनसे सख्ती से पूछा, सच सच बताओ, उस रात क्या हुआ था? हीरा कहाँ है? अगर सच बताओगे तो शायद तुम्हारी जान बख्श दी जाए, लेकिन अगर झूठ बोला तो ऐसी सजा मिलेगी कि तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी। 5 मुहाफिज एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उनमें से कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उनका खामोश रहना ही उनके गुनाह का सबसे बड़ा सबूत था। तब वजीर कमर उद्दीन ने सोचा कि यही आखिरी मौका है। उसने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, ये सब इस रहीम के साथ मिले हुए हैं। इन सब ने मिलकर चोरी की है। इन सब से सख्ती से पूछगछ की जाए, ये जरूर अपना गुनाह कबूल कर लेंगे। वह चाहता था कि इल्जाम सब पर बराबर बांट जाए और वह बच निकले, लेकिन बादशाह अब उसकी चालों को समझ चुके थे। उन्होंने वजीर को घूर कर देखा और कहा, वजीर आलम, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? तहकीक हम कर रहे हैं, आप नहीं। फिर बादशाह ने एक ऐसी चाल चली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने 5 मुहाफिजों से कहा, हम तुम सबको अलग अलग कमरों में ले जा रहे हैं। तुम सबको एक कागज और कलम दिया जाएगा। तुम सब उस कागज पर लिखो कि हीरा कहाँ छुपाया गया है। जिसकी बात सच निकली उसे हम न सिर्फ माफ कर देंगे बल्कि इनाम भी देंगे, लेकिन जिसका जवाब अलग हुआ उसे फौरन कत्ल कर दिया जाएगा। यह सुनते ही मुहाफिजों की जान सूख गई। वे जानते थे कि हीरा तो वजीर के पास है, लेकिन वे यह लिखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अलग अलग कमरों में ले जाया गया। दरबार में एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हर कोई सांस रोके इंतजार कर रहा था। वजीर कमर उद्दीन का बुरा हाल था। उसे लग रहा था जैसे जमीन फट जाएगी और वह उसमें समा जाएगा। कुछ देर बाद सिपाही उन सब के लिखे हुए कागज लेकर आए। बादशाह ने एक एक करके कागज पढ़े। पहले 4 मुहाफिजों ने घबराहट में अलग अलग मनगढ़ंत जगहों के नाम लिख दिए थे। किसी ने लिखा था कि हीरा रहीम के घर में है, किसी ने लिखा कि उसे जमीन में दबा दिया है। उनके झूठ साफ पकड़े गए, लेकिन 5वां मुहाफिज, जो उन सब में सबसे कम उम्र का था, उसने सच लिख दिया था। उसने लिखा था, बादशाह सलामत, हम बेगुनाह हैं। हमें वजीर आलम ने धमकी देकर इस साजिश में शामिल किया था। असली हीरा उन्होंने खुद चुराया है
और इस वक्त उनके शाही लिबास के नीचे उनकी कमर में बंधी एक आलीशान पट्टी में छुपा हुआ है। जैसे ही बादशाह ने यह पढ़ा, उनकी आंखें गुस्से से आग उगलने लगी। उन्होंने वजीर कमरुद्दीन की तरफ देखा, जो अब कांप रहा था। बादशाह ने बुलंद आवाज में हुक्म दिया, वजीर आलम की तलाशी ली जाए। 2 सिपाही आगे बढ़े और वजीर की तरफ लपके। वजीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। जब उसके शाही लिबास की तलाशी ली गई तो उसकी कमर से वही बेशकीमती लाल हीरा बरामद हुआ जो रेशम की एक पट्टी में लिपटा हुआ था। हीरे के मिलते ही दरबार में अल्लाहू अकबर का नारा गूंज उठा। सच आखिरकार जाहिर हो चुका था। रहीम की बेगुनाही सूरज की तरह रोशन हो गई थी। वजीर कमरुद्दीन का सर शर्म और खौफ से झुक गया। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। रहीम ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी आंखों से शुक्र के आंसू बह रहे थे। अम्मा बी ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा, जैसे वह अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही हों। बादशाह सलामत अपने तख्त से उतरे। वे सीधा रहीम के पास आए और उसे सजदे से उठाया। उन्होंने रहीम को गले से लगा लिया और कहा, रहीम, हम शर्मिंदा हैं। हमने तुम पर शक किया। तुम्हारी ईमानदारी सोने से भी ज्यादा खरी है। आज से तुम हमारे खजांची नहीं, बल्कि हमारे सबसे खास मुशीर सलाहकार होगे। फिर वे अम्मा बी के पास गए और उनके सामने सर झुकाकर कहा, अम्मा बी, आपने आज हमारी आंखें खोल दी। आपने हमें सिखाया कि इंसाफ क्या होता है। हम आपके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। दरबार में एक अजीब सा सुकून तारी था। सच की रोशनी ने साजिश के अंधेरों को चीर दिया था। जमीन पर 2 लोग झुके हुए थे। एक रहीम जो शुक्र के सजदे में गिरा था, और दूसरा वजीर कमरुद्दीन जो शर्म और जिल्लत के बोझ तले जमीन में गड़ा जा रहा था। बादशाह सलामत का चेहरा एक आईने की तरह साफ था, जिसमें गुस्सा, पछतावा और एक नए एहसास की चमक साफ दिख रही थी। उन्होंने रहीम को बड़े एहतिराम से उठाया और फिर उनकी निगाह वजीर पर पड़ी। उनकी आवाज में अब गुस्से से ज्यादा एक अजीब सी ठंडक थी, जो तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। कमरुद्दीन, बादशाह ने पुकारा। वजीर ने लरसते हुए सर उठाया। उसकी आंखों में मौत का खौफ नाच रहा था। हमने तुम पर एतबार किया, बादशाह ने कहना जारी रखा। तुम्हें इस सल्तनत का सबसे बड़ा ओहदा दिया। हमने सोचा तुम हमारे वजीर हो, लेकिन तुम तो आस्तीन में छुपे सांप निकले। तुमने न सिर्फ खजाने में चोरी की, बल्कि एक बेगुनाह को मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश भी की। तुमने हमारी आंखों में धूल झोंकी और हमारे इंसाफ को दागदार करने की कोशिश की। तुम्हारी सजा मौत से कम कुछ नहीं हो सकती। यह सुनते ही वजीर बादशाह के कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। आलीजा, मुझसे खता हुई, मेरी जान बख्श दें। मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा। बादशाह ने नफरत से उसे देखा और कहा, तुम्हारी जगह अब कदमों में नहीं, इस मुल्क के सबसे गहरे कैद खाने में है। लेकिन तुम्हारी सजा का फैसला हम नहीं, रहीम करेगा। यह सुनकर दरबार में सब हैरान रह गए। रहीम, जो अभी अभी मौत के चंगुल से बचकर आया था, उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन की किस्मत का फैसला करने का हक दिया जा रहा था। हर कोई देखना चाहता था कि रहीम क्या फैसला करता है। क्या वह इंतकाम की आग में जलते हुए वजीर के लिए वैसी ही सजा मांगेगा जो उसे मिलने वाली थी? वजीर भी हैरत और एक हल्की सी उम्मीद से रहीम की तरफ देखने लगा। रहीम ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसे वह अंधेरी कोठरी याद आई, वह बेबसी, वह दर्द। एक पल के लिए उसके दिल में भी गुस्से की एक लहर उठी। लेकिन फिर उसे अम्मा बी का चेहरा याद आया, जिन्होंने उसे सब्र और माफ करने का दरस दिया था। उसे याद आया कि उसका रब अर रहमान और अर रहीम है। उसने सोचा, जब अल्लाह अपने गुनाहगार बंदों को माफ कर सकता है, तो मैं कौन होता हूं इंतकाम लेने वाला। उसने बादशाह से मुखातिब होकर कहा, बादशाह सलामत, आपने मुझे इस लायक समझा। यह मेरी खुशनसीबी है, लेकिन सजा और जजा देना सिर्फ अल्लाह का काम है। मैं अपने दुश्मन के लिए वही मांगता हूं जो मैं अपने लिए मांगूंगा, और वह है हिदायत। अगर आप इसे सजा देना ही चाहते हैं, तो इसे इसकी दौलत और ओहदे से अलग कर दें और इसे एक मामूली इंसान की तरह जिंदगी गुजारने का हुक्म दें। शायद मेहनत की रोटी खाकर इसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। शायद यह समझ सके कि एक गरीब की इज्जत और ईमान की क्या कीमत होती है। इसके लिए जिंदा रहकर अपनी जिल्लत का बोझ उठाना मौत से बड़ी सजा होगी। रहीम का यह फैसला सुनकर पूरा दरबार दंग रह गया। बादशाह सलामत की आंखों में रहीम के लिए इज्जत 1000 गुना बढ़ गई। उन्होंने कहा, रहीम, तुम्हारा दिल हीरे से भी ज्यादा कीमती है। जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा।
उन्होंने हुक्म दिया कि कमरुद्दीन की सारी जायदाद जब्त करके शाही खजाने में जमा कर दी जाए और उसे शहर से दूर एक गांव में भेज दिया जाए, जहां वह अपनी बाकी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके गुजारेगा। उसके बाद बादशाह ने रहीम को अपने पास बुलाया और शाही खजाने से वही 100 अशरफियों की थैली निकालकर उसके हाथ में दी। रहीम ने फिर इनकार करना चाहा, लेकिन बादशाह ने उसे रोक दिया। रहीम, यह तुम्हारी नेकी का सौदा नहीं है, यह एक बादशाह का तोहफा है, एक दोस्त का नजराना है। इसे कबूल करो ताकि हमें यह एहसास न रहे कि हमने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया था। रहीम ने बादशाह की बात का मान रखते हुए वह थैली कबूल कर ली। फिर बादशाह ने अम्मा बी की तरफ रुख किया। अम्मा बी, आप हमसे कुछ मांगिए, आज हम आपकी कोई बात नहीं टालेंगे। अम्मा बी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बादशाह सलामत, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे दिया। उसने मेरी दुआ सुन ली, एक बेगुनाह की इज्जत बच गई और एक जालिम को उसके अंजाम से पहले हिदायत का रास्ता मिल गया। अब मुझे और क्या चाहिए? बस इतनी दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा अदल और इंसाफ के साथ हुकूमत करने की तौफीक दे। अम्मा बी की इस बेनियाजी ने बादशाह के दिल पर गहरा असर किया। उन्होंने ऐलान किया कि आज से अम्मा बी की देखरेख की जिम्मेदारी शाही खानदान उठाएगा और उन्हें अम्मा सल्तनत का खिताब दिया जाता है। दरबार बादशाह सलामत जिंदाबाद और रहीम जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। उस दिन रहीम अपने परिवार के साथ अपने नए आलीशान घर में दाखिल हुआ, लेकिन इस बार उसके दिल में कोई खौफ या बेचैनी नहीं थी। उसके दिल में सिर्फ शुक्र, सुकून, नया अज़म था कि वह इस नई जिम्मेदारी को भी उसी ईमानदारी और नेकी के साथ निभाएगा। रहीम के लिए शाही मुशीर का ओहदा फूलों की सेज साबित नहीं हुआ। यह एक ऐसी जिम्मेदारी थी जहां तलवार की धार पर चलना पड़ता था। एक तरफ बादशाह का एतमाद था तो दूसरी तरफ दरबार में मौजूद वे अमीर और ओहदेदार जिनके दिलों में अभी भी हसद की चिंगारी सुलग रही थी। यह वे लोग थे जो कमरुद्दीन के साथी थे और जिनकी बेईमानी की जड़ें सल्तनत में दूर तक फैली हुई थीं। उन्हें यह बात कतान गवारा न थी कि एक मामूली मजदूर उनके ऊपर आ बैठे और उनके कामों में दखल अंदाजी करे। रहीम ने जब अपने काम का आगाज किया तो उसे एहसास हुआ कि सल्तनत का निजाम अंदर से खोखला हो चुका है। हर तरफ रिश्वतखोरी और बेइंसाफी का बाजार गर्म था। गरीबों की फरियाद बादशाह तक पहुंचने से पहले ही दबा दी जाती थी और अमीर लोग कानून को अपनी लौंडी समझते थे। रहीम, जो खुद गरीबी की चक्की में पिसा था, इन सब बातों को खूब समझता था। उसने सबसे पहले सल्तनत के अलग अलग हिस्सों में भेष बदल कर जाना शुरू किया। कभी वह एक सौदागर बन जाता, कभी एक मुसाफिर, तो कभी एक किसान। इस तरह उसने लोगों के बीच रहकर उनकी असली मुश्किलात को समझा। उसने देखा कि बादशाह के नाम पर टैक्स तो वसूला जाता है, लेकिन वह शाही खजाने तक पहुंचने के बजाय बीच के ओहदेदारों की जेबें गर्म कर रहा है। उसने देखा कि अदालत में इंसाफ बिकता है और जिसके पास दौलत है, फैसला उसी के हक में होता है। यह सब देखकर रहीम का दिल खून के आंसू रोता। उसने यह सारी बातें बादशाह सलामत के गोश्त गुजार की। बादशाह, जो अब तक अपने अमीर व वजीर पर आंखें बंद करके भरोसा करते थे, यह हकीकतें सुनकर हिल गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे तो की रंगीनियों में गुम थे और उनकी रियाया किस हाल में जी रही हैं, इसकी उन्हें खबर तक न थी। रहीम की सलाह पर बादशाह ने कई सख्त इकदाम उठाए। उन्होंने रिश्वतखोर ओहदेदारों को उनके ओहदों से बर्खास्त कर दिया और उनकी जायदादें जब्त कर ली। उन्होंने नए कानून बनाए जिससे गरीबों को आसानी से इंसाफ मिल सके। उन्होंने टैक्स वसूल करने का निजाम दुरुस्त किया और इस बात को यकीनी बनाया कि हर पैसा शाही खजाने में जमा हो। रहीम इस पूरी मुहिम में बादशाह के शाना बहशाना कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। लेकिन यह काम आसान नहीं था। जिन लोगों के मुफाद पर जरूरत पड़ी थी, वे रहीम के खून के प्यासी हो गए। उन्होंने रहीम को रास्ते से हटाने के लिए नई साजिशें बुनना शुरू की। एक बार जब रहीम एक दूर दराज के इलाके के दौरे पर था, कातिलाना हमला करवाया गया, लेकिन रहीम की नेक नियति और अल्लाह पर ईमान उसके लिए ढाल बन गए। उसके साथ मौजूद वफादार सिपाहियों ने हमला आवरों को धूल चटा दी। जब बादशाह को इस वाकये की खबर मिली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इस साजिश के पीछे मौजूद तमाम अमीरों ओहदेदारों को गिरफ्तार करवाया और उन्हें सख्त सजाएं दी। इस वाकये के बाद रहीम का रौब और दर्जा दरबार में और भी बुलंद हो गया। लेकिन रहीम वही रहीम था। दौलत और शोहरत उसके सर पर सवार न हो सकी। वह आज भी उसी सादगी से जिंदगी गुजार रहा था। वह अक्सर अम्मा बी के पास जाता, उनके पास बैठता और उनसे दुआएं लेता।
अम्मा भी उसे हमेशा एक ही नसीहत करती, बेटा जब तक तुम जमीन पर रहोगे आसमान तुम्हारी हिफाजत करेगा, जिस दिन तुम्हारे पैरों ने जमीन छोड़ दी उस दिन तुम गिर जाओगे। रहीम ने उनकी इस बात को गिरह में बांध लिया था। उसने अपने बच्चों की तरबियत भी उसी तरह की। उसने उन्हें सिखाया कि वे एक मुशीर के नहीं बल्कि एक मजदूर के बेटे हैं और उनकी असली दौलत उनका ईमान और नेकी है। एक दिन बादशाह ने रहीम से कहा, रहीम तुमने हमारी सल्तनत के लिए जो कुछ किया है हम उसका कर्ज कभी नहीं उतार सकते। हम चाहते हैं कि हम तुम्हें इस मुल्क का सबसे बड़ा सूबा इनाम में दे दें जहां तुम्हारा हुक्म चलेगा। यह एक बहुत बड़ी पेशकश थी, लेकिन रहीम ने हाथ जोड़कर कहा, बादशाह सलामत, आपने मुझे पहले ही मेरी हैसियत से ज्यादा दे दिया है। मुझे हुकूमत करने का कोई शौक नहीं, मेरी खुशी लोगों की खिदमत करने में है। आप मुझे बस अपने पास रहकर अपनी रियाया की खिदमत करने का मौका देते रहें, मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। रहीम के इस जवाब ने एक बार फिर बादशाह का दिल जीत लिया। उन्हें यकीन हो गया कि रहीम इस दुनिया में किसी लालच के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा और मखलूक की खिदमत के लिए आया है। लेकिन रहीम नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था, और इस बार यह इम्तिहान किसी दुश्मन की तरफ से नहीं बल्कि एक ऐसी जगह से आने वाला था जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। कई साल गुजर गए। रहीम की नेक नियति और बादशाह के अदलो इंसाफ की बदौलत सल्तनत में खुशहाली का दौर दौरा था। रियाया अमन और सुकून से जिंदगी गुजार रही थी। रहीम के बच्चे अब बड़े हो चुके थे। उसका बेटा फजल बिल्कुल अपने बाप के नक्श एक कदम पर था, नेक, ईमानदार और खुदा परस्त। उसकी बेटी आलिया भी सादगी और हया का पैकर थी। अम्मा भी अब बहुत ज़ईफ हो चुकी थी। उनकी बीनाई, आंखों की रोशनी लगभग पूरी तरह जा चुकी थी, लेकिन उनके दिल का नूर पहले से भी ज्यादा रोशन था। रहीम और उसका परिवार उनकी खिदमत ऐसे करते जैसे वे उनकी सगी माँ या नानी हों। एक दिन अम्मा भी ने रहीम को अपने पास बुलाया। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। उन्होंने रहीम का हाथ अपने कमजोर हाथों में लिया और कहा, बेटा अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है, मुझे लगता है पुलवा आ गया है। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मा भी ऐसी बातें ना करें, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अम्मा भी मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें इस दुनिया से रुखसत होने का सुकून था। उन्होंने कहा, पगले मौत तो हक है, इससे कैसा डरना। मैंने अपनी जिंदगी जी ली और अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे तुम जैसा बेटा दिया। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। रहीम ने रोते हुए कहा, हुक्म करें अम्मा भी। अम्मा भी ने कहा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे उसी गरीब बस्ती के कब्रिस्तान में दफनाना जहां तुम्हारे जैसे नेक लोगों के कदम पड़ते हैं। शाही कब्रिस्तान की शान और शौकत मेरी इस फकीरी को रास नहीं आएगी। रहीम ने उनसे वादा किया। कुछ दिन बाद अम्मा भी ने बड़े सुकून से इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह दिया। उनके जनाजे में बादशाह सलामत से लेकर शहर का हर गरीब इंसान शामिल हुआ। उन्हें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया। रहीम को लगा जैसे उसके सर से दुआओं का साया उठ गया है। अम्मा भी के इंतकाल के कुछ अरसे बाद सल्तनत पर एक नई आफत ने दस्तक दी। पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने, जो हमेशा इस सल्तनत की खुशहाली से जलता था, अचानक हमला कर दिया। एक जबरदस्त जंग छिड़ गई। बादशाह सलामत और रहीम ने मिलकर फौज की कयादत की। रहीम, जो कभी एक मामूली मजदूर था, आज एक बेहतरीन सिपह सालार साबित हो रहा था। उसकी हिकमत ए अमली, रणनीति और उसकी बहादुरी ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन जंग तो जंग होती है, इसमें दोनों तरफ का नुकसान होता है। एक दिन मैदान जंग में एक अजीम हादसा पेश आया। दुश्मन की फौज ने बादशाह सलामत को घेर लिया। रहीम ने जब यह देखा तो वह दीवानों की तरह दुश्मन की सफों को चीरता हुआ बादशाह की तरफ लपका। उसने अपनी जान पर खेलकर बादशाह को तो बचा लिया, लेकिन इस कोशिश में दुश्मन का एक तीर आकर उसके सीने में लग गया। रहीम घोड़े से नीचे गिर पड़ा। मैदान जंग में कोहराम मच गया। बादशाह ने फौरन जंग रोकने का ऐलान किया और रहीम को उठाकर शाही खेमे टेंट में लाया गया। तबीबों, हकीमों ने बहुत कोशिश की, लेकिन तीर दिल के बहुत करीब लगा था। उन्होंने जवाब दे दिया। बादशाह सलामत रहीम के सिरहाने बैठे रो रहे थे। उन्होंने कहा, रहीम आंखें खोलो, हमारे दोस्त, हमें छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना हम इस सल्तनत को कैसे चलाएंगे। रहीम ने मुश्किल से आंखें खोली। उसके लबों पर दर्द के बावजूद एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने टूटी फूटी आवाज में कहा,
बादशाह सलामत, गम न करें, हर हर किसी को जाना है। मेरी मेरी एक आखिरी इल्तिजा है। बादशाह ने रोते हुए कहा, कहो रहीम, कहो, तुम्हारी हर बात पूरी होगी। रहीम ने कहा, मेरे बाद मेरे बेटे फजल को अपना मुशीर बना लीजिए। वह बिल्कुल मेरी तरह आपका वफादार रहेगा, और मुझे अम्मा भी के कदमों में दफनाना। यह कहते कहते रहीम की सांस उखड़ने लगी। उसने आखिरी बार अपने रब को याद किया और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। एक मजदूर जिसने अपनी नेकी और ईमानदारी से तकदीर को बदल दिया था, आज अपनी जिंदगी का सफर पूरा करके अपने रब के हुजूर पेश हो गया था। बादशाह पर जैसे गम का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने रहीम की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उसे पूरे शाही एजाज के साथ अम्मा बी की कब्र के पास दफनाया। पूरी सल्तनत शोक में डूब गई। हर घर में मातम था, जैसे उनका अपना कोई सगा संबंधी गुजर गया हो। जंग तो जीत ली गई, लेकिन सल्तनत ने अपना सबसे अनमोल हीरा खो दिया था। बादशाह ने रहीम से किए वादे के मुताबिक उसके बेटे फजल को नया शाही मुशीर मुकर्रर कर दिया। फजल ने भी अपने बाप की तरह पूरी लगन और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाना शुरू की। लेकिन तकदीर ने अभी अपना आखिरी पत्ता नहीं खोला था। खेल अभी बाकी था, और इस बार इस खेल का मरकज वह गांव था जहां सबका ठुकराया हुआ जलीलो ख्वार कमरुद्दीन अपनी जिंदगी के दिन गिन रहा था। वक्त का परिंदा अपने परों पर साल हा साल का गौबार लिए उड़ता रहा। रहीम के इंतकाल को 20 बरस गुजर चुके थे। बादशाह सलामत अब बूढ़े हो चुके थे और सल्तनत की बागडोर उनके बेटे शहजादा फरहान के हाथों में आने वाली थी। रहीम का बेटा फजल अपने बाप की तरह ही एक काबिल और ईमानदार मुशीर साबित हुआ था। उसने बादशाह की खिदमत उसी लगन से की जैसे रहीम किया करता था। सल्तनत में अमन और खुशहाली का सिलसिला चला जारी था। लेकिन इस कहानी का एक किरदार अभी जिंदा था, जो वक्त की गर्द में कहीं खो गया था। साबित वजीर कमरुद्दीन। उसे शहर से दूर जिस गांव में भेजा गया था, वहां उसने जिंदगी के वो रंग देखे जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे थे। शुरू में तो उसने अपनी जिल्लत और बर्बादी का जिम्मेदार रहीम को ठहराया। उसके दिल में इंतकाम की आग जलती रहती। उसे मेहनत मजदूरी करनी पड़ती जिसके वो आदी नहीं था। उसे 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ता। वो लोग जिन्हें वो कभी कीड़े मकोड़े समझता था, आज उस पर हंसते थे। उसने जिल्लत, भूख और बेबसी हर चीज का मजा चखा। कई साल इसी नफरत और घुटन में गुजर गए। वो जिस्म से बूढ़ा हो रहा था और नफरत ने उसकी रूह को भी खोखला कर दिया था। एक दिन गांव में एक शदीद कहत, फसलें सूख गईं, जमीन बंजर हो गई और लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। कमरुद्दीन, जो अब खुद एक कमजोर और लाचार बूढ़ा था, कई दिनों से भूखा था। उसमें उठने की भी ताकत नहीं बची थी। वो एक दरख्त के नीचे पड़ा अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह घूम गई। उसे अपना शाही महल, अपनी दौलत, अपना रौब सब याद आया। और फिर उसे रहीम का चेहरा याद आया। उसे याद आया कि कैसे रहीम ने उसके लिए मौत नहीं बल्कि हिदायत मांगी थी। उसे रहीम के वो अल्फाज याद आए। शायद मेहनत की रोटी खाकर इसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। आज 20 साल बाद भूख और बेबसी की इस इंतहा पर उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बह निकले। उसने उसी हालत में दिल की गहराइयों से अल्लाह से माफी मांगी। ए अल्लाह, मैं गुनहगार हूं, मैं जालिम था। मैंने तेरे एक नेक बंदे को सताया, मुझे माफ कर दे। मेरी सजा यही है कि मैं इस तरह जलील होकर मरूं, लेकिन मरने से पहले एक बार मुझे रहीम के परिवार से माफी मांगने का मौका दे दे। और फिर तकदीर ने अपना आखिरी और सबसे अनोखा खेल खेला। उसी दिन शहजादा फरहान और फजल, रहीम का बेटा, कहत ज़दा इलाकों का दौरा करते हुए उसी गांव में पहुंचे। उनके साथ खाने पीने के सामान से लदी हुई गाड़ियां थीं। वे गांव के हर घर में जाकर लोगों की मदद कर रहे थे। तभी फजल की नजर उस दरख्त के नीचे पड़े उस कमजोर बेहाल बूढ़े पर पड़ी। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे उठाकर उनके खैमे में लाएं। कमरुद्दीन को जब खैमे में लाया गया तो उसकी हालत बहुत खराब थी। फजल ने खुद अपने हाथों से उसे पानी पिलाया और उसे खाना खिलाने की कोशिश की। कमरुद्दीन ने जब अपने सामने इस नूरानी चेहरे वाले नौजवान को देखा तो उसे उसमें रहीम का अक्स नजर आया। उसने लरजती आवाज में पूछा, तुम कौन हो बेटा? फजल ने नरमी से जवाब दिया, बाबा, मैं फजल हूं,
इस सल्तनत का शाही मुशीर मरहूम रहीम का बेटा। ये सुनते ही कमरुद्दीन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जिसके बेटे से माफी मांगने की दुआ कर रहा था, वो खुद उसके सामने बैठा था, उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। कमरुद्दीन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने फजल के पैर पकड़ लिए और कहा, बेटा मुझे माफ कर दो। मैं वही बदनसीब कमरुद्दीन हूं जिसने तुम्हारे बाप पर जुल्म किया था। मैंने ही उन्हें चोरी के झूठे इल्जाम में फंसाया था। तुम्हारे बाप ने मुझे माफ कर दिया था, लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। आज 20 साल बाद अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और मुझे तुमसे मिलवा दिया। मुझे माफ कर दो बेटा। फजल ये सुनकर हैरान रह गया। उसने अपने बाप से ये कहानी सुनी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस किरदार से इस हालत में मिलेगा। उसके दिल में नफरत का एक कतरा भी नहीं उभरा। उसे अपने बाप की तरबियत याद आई। उसने कमरुद्दीन को उठाया, उसे गले से लगाया और कहा, बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे वालिद ने तो आपको उसी दिन माफ कर दिया था, और जब उन्होंने माफ कर दिया तो मैं कौन होता हूं दिल में कोई बात रखने वाला? आप पछतावे की आग में जल चुके हैं। यही आपकी माफी है। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो माफ करने वाला है। फजल का ये बर्ताव देखकर कमरुद्दीन की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसे लगा जैसे उसकी रूह पर पड़ा बरसों का बोझ उतर गया है। उसने फजल के सर पर हाथ रखा और दुआ दी, बेटा तुम बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारी नस्लों को भी नेक बनाए। कुछ दिन बाद कमरुद्दीन ने बड़े सुकून से इस दुनिया में अपनी आखिरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक इत्मीनान था, जैसे उसे मंजिल मिल गई हो। फजल ने एक इंसान होने के नाते उसकी तदफीन का इंतजाम किया। जब फजल वापस महल लौटा और उसने ये पूरा वाकया बूढ़े बादशाह को सुनाया, तो बादशाह की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, रहीम, तुमने सिर्फ मेरी सल्तनत ही नहीं बचाई, तुमने एक भटकी हुई रूह को भी हिदायत का रास्ता दिखा दिया। बेशक तुम्हारा दर्जा बहुत बुलंद है। इस लंबी दास्तान से हमें ये सीख मिलती है कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। एक, नेकी कभी जाया नहीं होती। रहीम ने तूफान की रात में जो छोटी सी नेकी की थी, वो किसी लालच या इनाम के लिए नहीं की थी, लेकिन अल्लाह ने उसी बेलौस नेकी के बदले उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। 2, सब्र का फल मीठा होता है। अम्मा भी और रहीम दोनों ने मुश्किल घड़ियों में सब्र किया, और सब्र का इनाम उन्हें इज्जत और कामयाबी की सूरत में मिला। 3, माफ करना इंतकाम से बेहतर है। रहीम ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को माफ किया। इसी माफी ने आखिरकार कमरुद्दीन की रूह को भी राहत दी। 4, तकब्बुर, घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है। कमरुद्दीन का घमंड उसे बर्बाद कर गया। 5, अल्लाह की तदबीर इंसान की सोच से बालातर है। इंसान सोचता है कि वो चालें चलेगा, लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है।